زمینوں پر قبضے سے متعلق سپریم کورٹ کا بڑا حکم دیا گیا۔ صوبے کی سرکاری زمینوں پر قبضے کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے کہا قبضے ختم کروانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر کے رپورٹ پیش کریں۔ سرکاری زمینوں سے قبضہ ختم کرانے کی تیاری۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سندھ کی سرکاری زمینوں پر قبضہ اور زمینوں کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سرکاری زمینیں واگزار نہ کرانے پر سپریم کورٹ برہم ہو گئی۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی بولے کراچی میں منصوبہ بندی کے تحت غیر قانونی گوٹ آباد کیے گئے۔ کراچی میں قبضہ اور تجاوزات ختم کرانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ سہراب گوٹ کے طرف تو SHOs نہیں جا سکتے۔ سینئر ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن نے کہا زمینوں کے ریکارڈ کے کمپیوٹرائزیشن کا عمل جاری ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے ایسا کب تک چلے گا؟ سرکاری زمینوں پر قبضہ برقرار ہے اور مسلسل ٹائم لے رہے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہاں قبرستان تک نہیں ہے، قبضہ مافیا کو زمینوں پر بٹھا دیا جاتا ہے اور اصل مالکان رل جاتے ہیں۔ سینئر ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن بولے کارروائی ہوتی ہے تو مظاہرین جمع ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے تو دوسرے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، رینجرز کو بھی مدد کے لیے ہدایات دی جائیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر گورنمنٹ اتنی بے بس اور کمزور ہے تو چھوڑ دیں کمپیوٹرائزیشن بھی، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ قبضے ختم کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر کے رپورٹ پیش کر دیں۔ اگر آپ کی پولیس اس قابل نہیں تو محکمہ ختم کر دیں۔ IG سندھ تمام SSPs کو ڈپٹی کمشنرز کی معاونت اور فورس فراہم کرنے کی ہدایت کریں۔ 6 ہفتے میں سرکاری زمینوں پر قبضہ اور آپریشن سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔ سندھ ہائی کورٹ میں گولڈن ٹاؤن شاہ فیصل میں غیر قانونی تعمیرات کے کیس کی سماعت کے دوران DG SBCA اپنے ہی افسران کے خلاف پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کورنگی میرے کہنے کے باوجود عدالت میں نہیں آئے۔ عدالت نے ریمارکس دیے یہ بتانے میں 1 سال لگا یہ کیس ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں، آپ لوگوں کو دعوت نامے بھیج کر بلانا پڑتا ہے۔ گولڈن ٹاؤن شاہ فیصل میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس۔ DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنے ہی افسران کی شکایات کرنے لگے۔ ہائی کورٹ میں جسٹس ندیم اختر کے روبرو سماعت کے دوران عدالت نے DG SBCA سے استفسار کیا کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت کون دے رہا ہے؟ آپ کے محکمے کی وجہ سے شہر کو سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ DG SBCA نے شکوہ کیا کہ ان کے افسران نہیں سنتے، اپنی کرتے رہتے ہیں۔ معطلی کے باوجود ڈپٹی ڈائریکٹر نہیں آئے۔ کچی آبادی اور بغیر پلان کی تعمیرات کا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں آتا، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سارا مسئلہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ SBCA کے وکیل نے موقف دیا کہ پورے علاقے کا کوئی لے آؤٹ پلان نہیں، آپ کے محکمے کی وجہ سے شہر کو سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عدالت نے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ سے جواب طلب کر لیا۔ سندھ حکومت کو بغیر لے آؤٹ پلان کے کا معاملہ دیکھنے کی ہدایت کر دی گئی۔ کراچی میں قبضہ مافیا سرگرم ہے۔ ناظم آباد میں پھر سے غیر قانونی پورشن بن رہے ہیں۔ SBCA کے افسران کی پشت پناہی میں تعمیرات جاری ہیں۔ بلڈر کاشف کی ہلاکت کے بعد البتہ یہ کام رک گیا تھا، لیکن ایک بار پھر اس کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظم آباد میں غیر قانونی پورشنز بن رہے ہیں۔ مبینہ طور پر SBCA افسران کی پشت پناہی سے یہ تعمیرات اس وقت ناظم آباد کے علاقے میں جاری ہیں۔ غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شہریوں سے لوٹ مار کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان نے 2 ٹوک بتا دیا، کہا پولیس کی مدد سے پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بالکل کارروائی ہوگی۔ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے، وہ کہیں بھی پارک کرتے ہیں تو اس میں انلیگل بھی لوگ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی آکشن ہوا نہیں ہوتا اور وہ سائٹ بھی نہیں ہوتی، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو KMC یا DMC نے جو لائسنسز دیے ہوئے ہیں لوگوں کو پارکنگ کے لیے اسپیسیفک جو جگہیں ہیں، اگر وہ پراپر طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے یا اوور چارج کرتے ہیں، زیادہ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، اس کو پراپر طریقے سے دیکھ بھال نہیں کرتے، تو نہ صرف ان کے خلاف کارروائی ہوگی بلکہ ان کے لائسنسز بھی کینسل ہوں گے اور ٹینڈرز بھی ہم کینسل۔ سٹی 21 کی خبر پر محکمہ صحت نے نوٹس لے لیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پیشو نے لیاری جنرل ہسپتال اور لیاری نرسنگ کالج میں کرپشن، طلباء پر تشدد، اسٹاف کو حبس بیجا میں رکھنے سمیت تمام معاملات پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ عبید شاہ کی رپورٹ۔ سٹی 21 بازی لے گیا۔ وزیر صحت کی جانب سے لیاری جنرل ہسپتال میں کرپشن، ممبر صوبائی اسمبلی پر تشدد، ڈاکٹر ارشاد عباسی کو چارج نہ دینے کے خلاف 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔
कमेटी के सरबराह एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ लियाकत अली भट्टी होंगे। मेंबरान में अब्दुल हमीद जमरानी और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक शामिल हैं। कमेटी को 11 नुकात पर मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदार अनासिर की निशानदही 7 रोज में करने की हिदायत कर दी गई है। महकमा सेहत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी को मेंबर सूबा असेंबली सैयद अब्दुल रशीद के साथ लियारी जनरल अस्पताल में बदसलूकी करने वालों की निशानदही करने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट लियारी जनरल अस्पताल डॉक्टर पीर गुलाम नबी शाह गिलानी को अस्पताल के अंदर यरगमाल बनाने वालों के नाम सामने लाने के अहकामात मिले हैं। MRI और एक्सरे की सहूलत गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने खरीदी है, मैंने नहीं दी। इन्होंने यहाँ पर 2000 और 4000 रुपए उसके फीस रखे हुए हैं। MS से पूछो तो कहता मुझे तो पता ही नहीं है। एक्सरे का यहाँ पर फीस है, लेबॉर्ट्री का यहाँ पर फीस है। महकमा सेहत के जारी नोटिफिकेशन में कमेटी को कहा गया है कि देखा जाए अस्पताल के किचन और ग़िज़ाई अजनास में कौन गबन कर रहा है। अस्पताल की हुदूद में हंगामा आराई और गड़बड़ कराने में हवा बीबी, शबाना बलोच और उज़ैर रुस्तम का क्या किरदार है। 2020 से अब तक MRI अल्ट्रासाउंड की फीसों से मुतालिक मुकम्मल और बैंक स्टेटमेंट के साथ छानबीन की जाए। ये भी देखा जाए कि गुज़िश्ता माह OPD के मरीजों की लैब टेस्टिंग रोकने की क्या वजूहात थीं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहकीकात में मजीद किसी मेंबर को शामिल करने का कमेटी को मुकम्मल अख्तियार हासिल है। कैमरामैन आसिफ के साथ उबैद शाह, सिटी 21। सिंध सरकार ने करप्शन से निजात हासिल करने के लिए ऑनलाइन शिकायती सेल कायम कर दिया है। अब शहरी एंटी करप्शन के दफातर के धक्के खाने के बजाय शिकायती सेल में ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। करप्शन के खिलाफ सिंध सरकार ने जहाद का अहद कर लिया। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने ऑनलाइन डिजिटल शिकायती सेल कायम कर दिया। महकमा एंटी करप्शन सिंध की जानिब से कायम करदा ऑनलाइन डिजिटल शिकायती सेल मुतारिफ कराने वाले IT एक्सपर्ट शाहिद अबड़ो कहते हैं कि ये पोर्टल साबिक वजीर आजम इमरान खान के बनाए गए पोर्टल से मुनफरिद है। इसमें कोई झूठी शिकायत नहीं कर सकता। साबिका वजीर आजम पाकिस्तान का जो पोर्टल बना हुआ था, मैं उसको चैलेंज तो इन हवाले से नहीं करूँगा कि वो हमारे गवर्नमेंट का एसेट है वो भी, मगर ये कहूँगा कि फंक्शनलिटीज़ में उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है ये। चेयरमैन एंटी करप्शन डॉक्टर मोहम्मद नवाज शेख का कहना है कि इस डिजिटल ऑनलाइन शिकायती सेल से करप्शन का खात्मा बआसानी हो सकता है, क्योंकि इनकी पहली कोशिश करप्शन से निजात हासिल करना है। अब ये सिस्टम तो बन चुका, अमल दरामद भी हम ही करेंगे, यही लोग करेंगे, और मैं इधर बैठ के बाकायदा आगे सिस्टम आया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुकम्मल एक किस्म की सुपरविजन होगी और मुकम्मल एक किस्म का वाच होगा एक एक कंप्लेंट पे। हम तजर्बे के तौर पर इसको अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी हम ले रहे हैं और वैसे भी इसको काम शुरू कर रहे हैं। सिंध वाहिद सूबा है जहां महकमा एंटी करप्शन ने ऑनलाइन डिजिटल शिकायती सेल कायम करके एक जिद्दत की मिसाइल कायम की है। कैमरामैन सानी के साथ आज़ाद नेड़ियों, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों को एक और तोहफा दे दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत सिंध का आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए सफर जारी। वज़ीर आला सिंध ने आलमी बैंक के ताउन से कायम किए गए सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे के तहत एम्बुलेंस सर्विस, फायर सर्विस, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस, वाटर रेस्क्यू सर्विस मुहैया की जाएंगी। सर्विस के तहत 230 एम्बुलेंसेज शहरियों को सहूलियात फराहम करेंगी। सिंध एमरजेंसी सर्विस की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के साथ मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और रसूल बख्श चांडियो भी मौजूद थे। डायरेक्टर सिंध एमरजेंसी सर्विस की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 1122 की सर्विस कराची, लाड़काना, ठट्टा, सजावल, कंबर शहदाद कोट और हैदराबाद में मौजूद है। कल से सर्विस बदीन में भी शुरू हो जाएगी। सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के लिए 107 कैडेट्स को खुसूसी तरबियत दी गई है। मजीद 315 अफराद को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस रेस्क्यू सिस्टम से मददगार 15 को भी मुंसलिक किया जाएगा। बल्दिया शर्की और कोरंगी में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तब्दीली के ऑर्डर्स की तस्दीक के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर्स की जानिब से लिखे जाने वाले लेटर्स का ताहाल जवाब नहीं आ सका है। कोरंगी के मसीही मुलाजमीन ने एहतजाज की धमकी दी तो इंतज़ामिया ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर से बैक डेट में तनख्वाहों के चेक पर दस्तखत करवा लिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बल्दिया कोरंगी के मसीही मुलाजमीन एहतजाज के लिए बल्दिया कोरंगी के हेड ऑफिस लांडी जोन में जमा हुए तो उन्हें इंतजामिया ने तनख्वाहों के चेक जमा कराने की खबर दी, जिस पर एहतजाज मौखर कर दिया गया। पूरे कराची में तनख्वाह हो चुकी है, लेकिन कोरंगी जोन की अभी तक तनख्वाह नहीं हुई जनाब आला। ये हमारी कमजोरी समझे या हमें नीचा समझते हैं या क्या समझते हैं, लेकिन ये कि जो हमारे लिए काम करेगा हम उनके लिए लब्बे शिक करेंगे। कपड़े ये वो लेना देना ये इन्होंने बड़ी मुश्किल की है, और हमारी HBL की तनख्वाह जो बहुत ही इनके लेट होती है। ये इनसे बोलिए कि हमारी HBL की तनख्वाह भी इनके साथ ही होनी चाहिए।
मौके पर मौजूद इंचार्ज सिंध अर्बन लेबर डिवीजन अकबर खान वदीकर का कहना था, एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्रुरनामों की सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तस्दीक नहीं कर रहा। मसीह बिरादरी की तनख्वाह लेट हुई। चंद यौम बाद हजारों मुस्लिम स्टाफ की तनख्वाह की ताखीर का खदशा मौजूद है। फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे एमसीज वगैरह पे फौरी तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं और अल्लाह हुकाम से रब्ता किया हुआ है। 1-2-4 दिन के अंदर इसका मामला भी हल हो जाएगा, क्योंकि आगे मुस्लिम स्टाफ, हजारों की तादाद में मुस्लिम स्टाफ की सैलरी का मामला खड़ा हो जाएगा। मसला ये है कि ये जाली काम है, 2 नंबर काम। सिंध बैंक के अंदर इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो इनके जो साइन कैसे वेरिफिकेशन होंगे? जब साइन वेरिफिकेशन नहीं होंगे तो मुलाजमीन की तनख्वाह कहाँ से होगी? तैनात एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शरीफ खान का कहना था कि इनकी पहली तरजीह मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी है। कल मैं आया तो पता चला कि सैलरी नहीं हुई। फिर मैंने अपने सेक्रेटरीट वगैरह से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल क्योंकि क्रिसमस का डे था, एक बड़ा सबके हमारे जो मसीह भाई हैं उनकी खुशी का मौका था, तो मैंने किसी तरीके से सैलरी हो जाए, तो मैंने फिर कहा कि भाई जो है इस सैलरी को किसी तरीके से करवाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सैलरी हो गई है। बल्दिया शहर की कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्रनामों पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की फौरी वजाहत जरूरी हो गई है, क्योंकि इस मामले ने अवामी खिदमात और इंतजामी मामलात को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में बल्दियाती इंतखाबात का मेला सज गया है। तमाम जमातों के नुमाइंदे इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक मजीद इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला है वो शहर में एक बार फिर चल पड़ा है। एक बार नहीं, 2 बार और 3 बार कैंसिल होने के बाद अब चौथी बार ऐसा लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में तमामी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं वो मैदान अमल में मौजूद हैं। हमारे साथ जमात इस्लामी के जो नुमाइंदे हैं UC3 मोहम्मद सलीम नाज़िमाबाद टाउन के, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी तैयारियाँ हैं वो कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी 3 दफ़ा तैयारियाँ कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। अगर हमें कोई कहा कि 1 हफ्ते में इलेक्शन हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम फिल फौर तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से तो तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। यानी पहले लोगों के कार्ड बनाना, पोलिंग एजेंट की तैयारी, दीगर लोगों से राब्ते, तो कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब कहेंगे, जितने भी भागेंगे ये लोग इलेक्शन से, हम इंशाअल्लाह ताला इनके पीछे पीछे भागेंगे। तो सर मुझे ये बताइएगा कि इलाके के वो कौन से मसाइल हैं जिनको आप जीतने के बाद अपनी अवलन तरजीहात के अंदर रखेंगे? एक तो जो है हमारे यहाँ जो अपना नाजायज़ जो है बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके कोशिश करेंगे काबू करने की। फिर सेवरेज का बहुत बड़ा मसला है, रोड सारे डैमेज हो चुके हैं, और पानी का कुछ 4 नंबर के इलाकों में मसला है। ये इंशाल्लाह हमारी तरजीह होगी। पार्क कुछ है ना गैर आबाद पड़े हुए हैं, उसको दोबारा से इंशाल्लाह आबाद करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद थे, जिनका कहना था कि इलाके को हरा भरा करना हो या फिर इलाके में जो इंक्रोचमेंट का मसला है उसे हल कराना हो, ये तमाम ही जो मसले हैं ये इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी के अंदर होंगे अगर ये जीत जाते हैं तो। जी, सिंध सरकार ने एक बार नहीं दूसरी बार भी कमिश्नर सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट को 1 हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं किया। 20 ग्रेड के अफसर अहमद बख्श नारेजो से इजाफी ओहदे का चार्ज वापस ले लिया गया है। मामला क्या है, तफसील क्या है, आज़ाद नोहड़ियों से जान लेते हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, कमिश्नर जो है इंस्टीट्यूट जो खासतौर पर सोशल सिक्योरिटी है, इनके अहमद बख्श नारे जो हैं, जिनको 1 हफ्ता कबल इनका कमिश्नर तैनात किया गया था, लेकिन आज जो है फिर उनसे इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। वो इस वक्त सेक्रेटरी कॉलेज तालीम तैनात हैं, इस वजह से उनसे ये ओहदा वापस ले लिया गया। जबकि अख्तर अली कुरैशी जो मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं, उनको वहाँ से तबादला करके नया कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट तैनात कर दिया गया है, जिसका भी महकमा सर्विसेज जनरल इन्वेस्टिगेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन सिंध का ये वाहिद 20 ग्रेड का अफसर है अहमद बख्श नारेजो, जिसका किस्मत की देवी साथ नहीं दे रही है। मुतअद्दिद बार कई महकमों में अहम ओहदों पर फायज रहे, लेकिन 1 हफ्ता टिकने के आज एक बार फिर से जो महकमा मेहनत अफराधी कुव्वत है, उन्होंने इससे ओहदे से हटाकर जो है बाज़ाब्ता तौर पर तालीम महकमा तालीम में उनकी खिदमत को सर अंजाम देने का फैसला कर ले, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सोहराब गोड UC5 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार सुल्तान बुलेदी, वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार लाला रहीम और काउंसलर आमिर ज़ेब बल्दियाती इलेक्शन में जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दिए। बोले, बुनियादी मसाइल हल करने के लिए आवाम के दरमियान मौजूद हैं, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट।
कराची में बल्दियाती इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार अपने हल्के में मुतहरिक हैं। पीपल्स पार्टी सोराब गोड टाउन UC 5 के उम्मीदवारों ने हाजी सैफुल गोड का दौरा किया। वाइस चेयरमैन लाला रहीम बोले, ये इलाका कराची का आगाज है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुए। अब पीपल्स पार्टी ने इलाके के मसाइल हल कराने का बेड़ा उठाया है। मैं पहले भी यहाँ जो UC 31 से मैंने इलेक्शन लड़ा, वाइस चेयरमैन में बना था। अब UC 31 जो है इस वक्त में टोन बन गया, इसमें 8 यूनिवर्सिटियाँ बनी है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और अब लगे हुए लोगों की खिदमत के लिए। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार चेयरमैन सुल्तान बलीदी बोले, 3 बार इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, लेकिन चौथी बार भी हो गए तब भी हम यहीं रहेंगे, हमारा मकसद अवामी खिदमत है। पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, GL हैं, उनका इलेक्शन हो ना हो बस ये खिदमत करते रहते हैं। इलेक्शन पिछली मरतबा 3 मरतबा कैंसिल हुए, अब भी अगर इलेक्शन हो तब भी ठीक है, नहीं हो फिर भी हम खिदमत कर रहे थे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी काउंसिलर उम्मीदवार आमिर ज़ेब ने कहा कि काउंसिलर आवाम के निशाने पर होता है, आसानी से इस तक पहुंचा जा सकता है। हमने आवाम की खिदमत की है और इलाके में मौजूद हैं। हम लोगों ने पीपल पार्टी वाले जो है GLO के तौर पर हम 24 घंटे के लिए आवाम की खिदमत में है। और आपने जो सवाल किया है कि भाई गिरबान आपके पकड़े जाएंगे, तो वो तो ऐसे भी हमारा गिरबान पकड़ेगा, क्योंकि लाला तक पहुँचने में तो टाइम लगेगा। और चेयरमैन साहब का घर भी 3 नंबर गली में है, मेरा 4 नंबर गली में है, तो हमको पकड़ना आसान है उनके लिए। उम्मीदवारों का कहना था कि पीपल्स पार्टी के अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर अवाम की खिदमत का सफर जारी रखेंगे। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। स्टेट बैंक की माली साल 22 की डिजिटल अदायगियों की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के दौरान मालियत के लिहाज से मोबाइल फ़ोन बैंकारी 141% इजाफे से 11.9 ट्रिलियन रुपए रही और इंटर बैंक बैंकारी 81% इजाफे से 10.2 ट्रिलियन रुपए पर पहुँच गई। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल में डिजिटल अदायगियों में इजाफे का रुझान जारी रहा। मुल्क में डिजिटल अदायगी के निज़ाम को फ़रोग और तोसी देने की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 तक रास्त इस्तेमाल करने वालों की तादाद 15 लाख से तजावज़ कर चुकी थी और जून 2022 तक रास्त इस्तेमाल करने वालों ने 102 अरब रुपए मालियत की 79 लाख ट्रांजैक्शन की। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 के दौरान मोबाइल फ़ोन बैंकिंग की तादाद 84 लाख और इंटरनेट बैंकारी के इस्तेमाल कुनगान की तादाद 1 करोड़ 23 लाख तक जा पहुंची थी। मालियत के लिहाज से मोबाइल फ़ोन बैंकारी 141% इजाफे से 11.9 ट्रिलियन रुपए रही और इंटरनेट बैंकारी 81% इजाफे से 10.2 ट्रिलियन रुपीज़ रही। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 में ई-कॉमर्स मालियत के लिहाज से 75% इजाफे से 106 अरब रुपए पर पहुंच गई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 में मुल्क भर में 32,958 POS मशीनें नस्ब की गईं और POS का नेटवर्क 45.8% इजाफे से 1,04,865 पर पहुंच गया। मुल्क में ATM नेटवर्क 4.8% इजाफे से 17,133 ATM तक जा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक POS के जरिए ट्रांजैक्शन की तादाद 13 करोड़ 75 लाख रही। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 में ATM के जरिए 69 करोड़ 23 लाख ट्रांजैक्शन की गई। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में शाम कलंदर का इनेकाद, मकामी गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मजीद बताएंगे राहील बेग। जी बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में इस वक्त शाम कलंदर का इनेकाद किया गया है, जिसमें सिंध के मुकामी गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। शाम कलंदर में हज़रत लाल शहबाज कलंदर की धमाल पेश की जा रही है। जैसे ही कोई गुलकार धमाल पढ़ता है तो उसके बाद मजमे में वजदानी कैफियत तारी हो जाती है और लाल शहबाज कलंदर से अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, जिन्होंने अपने गले में लाल रंग के पटके भी पहने हुए हैं। शाम कलंदर का मकसद हज़रत लाल शहबाज कलंदर की जो तालीमात हैं उनका नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करना और उनके मैसेज को आगे पहुंचाना है। इस वक्त भी यहाँ पर प्रोग्राम जारी है, जिसमें मुख्तलिफ गुलकारों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम्स वक्त की अहम ज़रूरत है और इन्हें तसलसल के साथ होना चाहिए। जैसे ही लाल की बात की जाती है, लाल शहबाज कलंदर की बात की जाती है, तो लोगों का जो जोशो वलवला है वो काबिल दीद होता है और लोग इस प्रोग्राम से ख़ास से महसूस हो रहे हैं। जी, बंस रोड की स्पेशल चना चाट शहरियों में मज़ीद मकबूल हो गई है। दुकानदार कहते हैं कि हमारे जैसी चना चाट पूरे बंस रोड पर नहीं मिलती। अक्सर शायद मज़ीद बता रही हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद के लोग जहाँ खाने के शौकीन होते हैं, तो चाहे वो चाट हो, चना चाट हो या मिक्स चाट हो,
आज मैं शहर कायद के लोगों को तारुफ करवाऊंगी एक ऐसी चना चाट जिसका नाम है दिल पसंद। मेरे साथ यहाँ के ऑनर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो ऐसे क्या जो स्पेशल है इसमें मिलाते हैं जो लोगों को इनकी चना चाट इतनी पसंद आती है। जी बिल्कुल, मुझे आप बताएं कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है आपकी फ्रूट चना चाट में? हमारी स्पेशलिटी हमारे अपने मसाले, ये हमारे अपने होममेड हैं, ये हमारे खुद के तैयार किए हुए मसाले। ये मसाले रखे हुए सारे हमारे अपने खुद के हाथ के बने हुए घर के तैयार हुए मसाले। कौन कौन से मसाले आपके जो हैं वो स्पेशल है? स्पेशल हमारे ये मसाला, ये हमारा दही बड़े का मसाला, ये हमारा स्पेशल मसाला। अच्छा, आप दही बड़ों का मसाला भी चाट में डालते हैं? जी। तो लोग जो है वो कौन सी मिक्स चाट बहुत पसंद की जाती है, खट्टी मीठी चाट है हमारी। लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, ऐसा क्या स्पेशल है आपकी चाट में जो वो आपके पास खाने आए? हमारी चाट में ये स्पेशल है कि पूरे बंस रोड पे हमारी जैसी चाट नहीं है किसी के पास। कहना है कि पूरे बंस रोड पे कहीं ऐसी चाट नहीं जो इनके पास है, जो इनके जायके हैं। साथ ही यहाँ लोग सिर्फ खुद खाने नहीं आते बल्कि अपने दोस्त हब्बाब के लिए खरीद के भी लेके जाते हैं। इनकी चाट का मज़ा ऐसा है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।